A very good morning to all of you. Myself Dr. Ambika. Today I am going to teach you the special methods for finding oblique asymptotes of a rational algebraic curve f of x y equal to 0. So basically we are rewriting the given equation of the curve in different forms for finding the oblique asymptotes. So the first method for finding the oblique asymptote of a rational algebraic curve is, so if the equation of curve is of this form, so basically if it is in degree 1, then the asymptote parallel to this line, that is ax plus by plus c is equal to 0, is given by this formula. So if we have a given curve of this form, then we have to use this formula for finding the oblique asymptote. Similarly, if the equation of the curve is of this form, that is if it is in 2 degree terms, means degree 2 terms, that is ax plus by whole square f n minus 2xy plus g n minus 2xy equal to 0, then we have two asymptotes because here degree is 2, so we have two asymptotes parallel to the line, that is ax plus by equal to 0, and we get this asymptote by using this formula. So for finding the oblique asymptote in degree 2 curve, we have to use this formula. Similarly, we have a third method. So in third method, if the equation of the curve is of this form, if we have one 2 degree term, then 1 degree term, and similarly, then the two asymptotes parallel to this equation, that is ax plus by equal to 0, is given by this formula. So now we will basically study the working method of finding the oblique asymptote. So basically what we have to do, we have to first factorize the highest degree terms. So after factorizing, we have to retain one linear factor and divide the product of divide by the product of other factors. Similarly, after dividing the product of other factors, we will take the limits when x tends to infinity and y tends to infinity in the direction of the retained factor. So note, if the limits do not exist, then there is no asymptote parallel to that line, or we can say equation ax plus by plus c equal to 0. So basically हमें करना क्या है, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन जो कर्व की हो, अगर वो हमें इस फॉर्म में गिवन हो, अगर इस फॉर्म में मीन्स जिसकी डिग्री 1 है, तो जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक एजम्प्टोट मिलेगा. सो उस एजम्प्टोट को फाइंड करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है. मीन्स हमें यही लिखना है ax प्लस by प्लस c प्लस हमें ये लिमिट जो है वो पुट करनी है, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ओब्लिक एजम्प्टोट मिलेगा. सिमिलरली अगर हमारे पास जो गिवन जो इक्वेशन ऑफ कर्व होगी वो डिग्री 2 में होगी, तब हमारे को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. इसी तरीके से अगर हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होगी, यहाँ पे मीन्स डिग्री 2 है, एक और टर्म है, उसके साथ थर्ड टर्म और है, तब हमारे पास जो उसको जो ओब्लिक एजम्प्टोट फाइंड करना होगा उस कर्व का, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो ये बहुत सिंपल है, मगर जस्ट हमें थोड़ा सा ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं कि किस तरीके से अप्लाई करने, और हम इसी ईजीली हम एग्जाम्पल्स को या क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो जो इसका वर्किंग मेथड है उसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें जो भी हाईएस्ट डिग्री होंगी उनको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, जो उसका कोई भी जो हमें लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे उससे हम क्या करेंगे, पूरे बाकी जो अदर टर्म्स है उसको डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे. सो अगर हमारे पास अगर जो हमारा लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम वहाँ से हमें क्लियरली शो हो जाएगा कि कोई भी एजम्प्टोट पैरेलल टू दिस इक्वेशन हमें नहीं मिलेगा. सो दैट इज देयर इज नो एजम्प्टोट पैरेलल टू दैट इक्वेशन. So now we will solve one example. हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसमें ये सारे मेथड्स अप्लाई हुए होंगे. So one example is find all the asymptotes of the following curve. ये हमारे पास कर्व गिवन है, अब हमें इसके asymptotes फाइंड करने. हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी इक्वेशन, ये जो हमें कर्व की इक्वेशन है इसको रीराइट करेंगे, या मीन्स हम इसके थोड़े लीनियर फैक्टर्स निकालेंगे. सो लीनियर फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करूँगी मैं, हम इनमें से जो हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पे, इनमें से देखेंगे कॉमन क्या क्या आ सकता है, उनको हम कॉमन निकालेंगे. जैसे यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स में मैं देख रही हूँ, यहाँ से मैं x² कॉमन निकाल सकती हूँ, तो मैंने x² निकाला और अंदर जो ब्रैकेट में टर्म्स बच जाएगी
बचेगी, यहाँ से एक x बचेगा और प्लस यहाँ से y। सिमिलरली जो आगे के दो टर्म्स हैं उनमें से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, वाई स्क्वायर निकाल लिया है, माइनस वाई स्क्वायर, जो अंदर टर्म्स बच जाएगी वो हमारे पास आएगा x प्लस वाई, और जो रेस्ट ऑफ जो टर्म्स है उसको हमने एज इट इज़ ही रख दिया। सो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये x प्लस वाई है और यहाँ पे भी x प्लस वाई है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, यहाँ से भी इन दो टर्म्स में से हम ये टर्म कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे x प्लस वाई कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास बच गया x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली जो रेस्ट टर्म्स है वो मैंने एज इट इज़ ही रखी हैं। यहाँ से हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, जिसका जो किसके इक्वल होता है वो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर दी। जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो यहाँ से ये जो एक्स प्लस वाई अब किस में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक्स प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई लिख दिया और बाकी रेस्ट जो टर्म्स है वो एज इट इज ही लिखिए। सो अब जो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन एक आई है, अब इस इक्वेशन को मुझे जो मेरे पास जो 3 मेथड्स हैं जो हमने अभी पढ़े उसमें हमें इनको रीराइट करना है। तो अब मैंने इस इक्वेशन को कैसे रीराइट किया वो देखो कि इसमें मैं या तो एक टाइम पे मैं x माइनस वाई को यहाँ पे रख के और x प्लस वाई जो होल स्क्वायर है इसको डिनोमिनेटर में ले सकती हूँ, और या मैं क्या कर सकती हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर को एज इट इज रख सकती हूँ और x माइनस वाई को डिनोमिनेटर में ला सकती हूँ। तो ये मेरे पास 2 मेथड्स बन जाएंगे जो कहाँ हमें अप्लाई करना है, जिसमें हमें मेथड 1 और मेथड 2 वहाँ यहाँ पे हमें अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से मैंने क्या किया, x माइनस वाई लिख दिया और बाकी पूरी टर्म्स को क्या कर, जो रेस्ट लीनियर फैक्टर्स हैं, जो रेस्ट जो कर्व की इक्वेशन है उसको इसी फैक्टर से क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है। ये जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है इसको मैंने इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। अगर हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल कर दें, अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल करेंगे ये तो 0 ही हो जाएगा और यहाँ पे इसके साथ वापस मल्टीपल हो जाएगा, तो हमारे पास सेम इक्वेशन नंबर 1 ही आएगा। सो हमने अभी मेथड 1 में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी जो इक्वेशन ऑफ कर्व है वो इस फॉर्म में, ये अब हमारे पास सेम है, देखेंगे हम इक्वेशन नंबर जो ये 1 है, या इसको हम रख सकते हैं 1 स्टार, ये जो 1 स्टार है ये बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में है। देखिए ये ए एक्स प्लस बी वाई यही आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में है, और साथ में ये अगली टर्म है हमारी ये जो जी एन माइनस 1 एक्स वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो ऐसे इक्वेशंस में जब भी हमें एसिम्प्टोट पैरेलल निकालना है उस इक्वेशन के लिए, तो हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना। तो मीन्स हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखना है, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है। तो यही फॉर्मूला जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी वैल्यूज निकालेंगे। तो हम कैसे करेंगे देखें। सो हम लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर द एसिम्प्टोट पैरेलल टू इफ एग्जिस्ट, हम लिखते हैं क्योंकि अभी हमें पता नहीं है वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, वो हमें पता चल जाएगा इससे। इफ एग्जिस्ट पैरेलल टू द लाइन, यहाँ से देखिए क्योंकि द एसिम्प्टोट पैरेलल टू दिस लाइन इज गिवन बाय, तो हम भी सेम यही लिखेंगे द एसिम्प्टोट पैरेलल टू। अब यहाँ पे लाइन क्या है हमारे पास, यहाँ पे लाइन जो है वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे मेरे पास x माइनस वाई, ये वाली इक्वेशन है, तो x माइनस वाई, तो एसिम्प्टोट पैरेलल टू x माइनस वाई इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, कैसे लिखेंगे हम इसको, इज गिवन बाय, हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस लिमिट ऑफ दिस होल क्वांटिटी। तो हम वही लिखेंगे। अब उस जगह पे हमारे पास है यहाँ पे एक्स माइनस वाई प्लस लिमिट ऑफ दिस होल क्वांटिटी, तो मैं वही लिखूंगी लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और वाई बाई एक्स टेंड्स टू माइनस ए बाई बी। अब जो ए है, ए बेसिकली क्या है, इसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे लाइन जो थी हमारे पास एक्स माइनस वाई है, तो एक्स का यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। सिमिलरली जो बी यहाँ पे कोफिशिएंट है वो कितना है, -1 है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई -1 एंड बाकी की होल टर्म जो हमें लिखनी है दैट इज 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हमें सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है और वहीं से हमारे पास एसिम्प्टोट आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई प्लस, अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास सीधा y इज इक्वल टू x, सॉल्व करके 1 होगा, x को मैंने यहाँ पे 1 के साथ क्रॉस मल्टीपल कर दिया। सो दूसरा आ जाएगा टर्म 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई डिवाइडेड बाई
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। सो अब मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ पे अब लिमिट अप्लाई करनी है मीन्स अब मुझे वाई की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है, एक्स पुट करनी है। तो जो मैं वाई की जगह पे वैल्यू एक्स पुट करती हूँ तो क्या आ जाएगा इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब वाई की जगह पे क्या करना है, एक्स पुट करना है, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो अब इसके आगे हम ऐसे करेंगे इसको सॉल्व, हम लिखेंगे x माइनस वाई प्लस लिमिट आगे आ जाएगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर। इसी तरीके से 3x में से एक x कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, सो 2x होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 4x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं तो 2 2 हो जाएगा 4x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी भी पुट करनी है और उससे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेती हूँ जो मेरे पास टर्म्स कॉमन आ सकती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 4 मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर आ जाएगा 4 माइनस 2 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर। सो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, साथ में आ गया 4 माइनस 2 बाई एक्स और साथ में एक और टर्म है दैट इज होल डिवाइडेड बाई 4। सो दिस इज इक्वल टू 0। अब हम जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, x माइनस वाई प्लस एक्स जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो हम सीधा लिख सकते हैं 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो हमारे पास एजम्प्टोट आएगा वो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस 4/4 हो गया दैट इज 1 दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट एजम्प्टोट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट एजम्प्टोट। सो हम लिखेंगे दिस इज 1 एजम्प्टोट। सो एक बार हमने इक्वेशन ऑफ कर्व को इस फॉर्म में लिख लिया तो अब अगली बार हमने फिर इक्वेशन ऑफ कर्व को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो ये कर्व है यहाँ पे मैंने पहले x माइनस वाई को एज इट इज रखा था और x प्लस वाई होल स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लिया। अब मैं अगली टर्म में क्या करूँगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर को एज इट इज रखूँगी और x माइनस वाई को डिनोमिनेटर में ले लूँगी। सो हम लिखेंगे इसके लिए, सो जो हमारे पास जो मेन इक्वेशन थी वो ये थी, जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो थी x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। सो अब मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन को मैंने फिर से रीराइट किया इस फॉर्म में। तो मीन्स अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो डिनोमिनेटर है इसको में x माइनस वाई ले लिया। तो जब मैंने इसको यहाँ पे ले लिया x माइनस वाई डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से अगर मैं 0 के साथ इसको क्रॉस मल्टीपल करूँगी तो ये अगेन यही इक्वेशन आएगी, जो ये वाली इक्वेशन सेम यही वापस हमारे पास आ जाएगी। तो अब मैं इसको और बेसिकली मैं इसको जो हमारे पास मेथड थर्ड था तो मैं उसको बेसिकली उसमें ब्रेक कर रही हूँ। तो उसको ब्रेक करने के लिए मैंने अगेन क्या कर दिया, इन दो टर्म्स में से एक कॉमन ले लिया। इन दोनों टर्म्स में से जो 2 यहाँ पे मेरे पास 2y आता है कॉमन, तो यहाँ पे जो पीछे टर्म्स बच जाएंगी ब्रैकेट में x प्लस वाई आएगी और बाद में डिनोमिनेटर मैंने सबको सेपरेट कर दिया। तो मीन्स यहाँ पे आ गया x माइनस वाई और सिमिलरली यहाँ से माइनस यहाँ पे बाहर कॉमन आ गया तो अंदर आ जाएगा 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 0। सो अगर मैं इसका होल डिनोमिनेटर मीन्स अगर इसका मैं एलसीएम ले लूंगी तो अगेन मेरे पास यही इक्वेशन आएगी जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। सो अब यहाँ से जो मेरे पास एजम्प्टोट पैरेलल टू द ये जो इक्वेशन है मीन्स a x प्लस वाई के है वो अब मैं निकालूंगी। सो मैं लिखती हूँ, सो देयरफॉर द एजम्प्टोट्स if it exists parallel to x plus y equal to 0 are given by
तो हमें कैसे लिखेंगे हमको, अब हमने मेथड 2 में जो मेथड 3 में जो फॉर्मूला पढ़ा था, ये अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन होगी तो उसके लिए जो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू दिस इक्वेशन जो होगी वो हमें इस फॉर्मूले से निकालना है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे ए, यहाँ पे जो था ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है मेरे पास क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो वही चीज़ लिखी जाएगी, प्लस अगेन x प्लस वाई, देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और साथ में y बाई एक्स टेंड्स टू, ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस a बाई बी। और सेम जब मैं यहाँ पे a क्या है मेरे पास, वो भी पॉजिटिव है, b भी कितना है, उसका जो कोफिशिएंट है वो भी 1 है, तो लिखेंगे दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1। सो साथ में जो अगली टर्म है दैट इज 2y divided by 2y divided by x minus y. Similarly, minus limit x tends to infinity, y is by x, this is equal to minus 1 by 1, साथ में आ जाएगा 3x minus y डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। तो सेम अब हम सिर्फ इक्वेशंस इसको सॉल्व करेंगे और वहाँ से हमारे पास सेकंड एसिम्पटोट आएगा, क्योंकि ये सेकंड डिग्री में हमारे पास कर्व आ गई, यहाँ से देखिए ये हमारे पास सेकंड डिग्री कर्व आ गई, जो इससे प्रीवियस में हमारे पास डिग्री 1 की कर्व आई थी, तो उसके लिए हमने अलग फॉर्मूला लगाया और सेम डिग्री 2 के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। सो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अगेन y इज इक्वल टू माइनस एक्स लिख रही हूँ, सो लिमिट 2y डिवाइडेड बाई x माइनस वाई माइनस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगेन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, देन 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे माइनस एक्स पुट करना है। सो हमारे पास आ जाएगा दिस टर्म एज इट इज़ रहेगी, ये भी टर्म एज इट इज़ रहेगी, इस टर्म में हमने अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 इंटू वाई, वाई की जगह पे क्या करना है पुट हमें माइनस एक्स, तो 2 इंटू माइनस एक्स, इसी तरीके से x माइनस वाई की जगह पे हो गया अगेन माइनस एक्स। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और आगे 3x माइनस एक्स, तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x इंटू माइनस एक्स, सो दिस होल इक्वेशन इक्वल टू 0। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इंटू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस एक्स हो जाएगा अगेन हमारे पास 2x। सो हम लिख सकते हैं, या तो मैं इसको भी एज इट इज ऐसे लिख लेती हूँ, x प्लस एक्स, इसी तरीके से माइनस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। सो इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर ले तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इंटू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 2x है तो ये यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास खाली माइनस 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा हमारे पास ये 3x और एक x हो गया 4x डिवाइडेड बाई 2x, तो x कैंसिल, ये हमारे पास बच गया 2, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, और लिमिट क्योंकि यहाँ पे अब x की टर्म है नहीं तो सीधा इसके साथ माइनस 1 हो जाएगा, सिमिलरली माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या मैं इसको लिख सकती हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, तो हम वो फैक्टर्स लिख देते हैं। सो जो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास वो आ जाएंगे x प्लस वाई, एक हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 एंड x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो 2 एसिम्पटोट्स हमें मिल गए, कौन कौन से मिल जाएंगे, एक मिलेगा x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन नंबर इसको हम 3rd रख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4th रख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गए, 2 एसिम्पटोट्स। सो
जो अब हमारे पास इस पूरी कर्व के टोटल एसिम्पटोट्स जो आ गए, हमारे पास 3 आ गए, एक जो प्रीवियस था और जो हमने पहले इक्वेशन में निकाला, इसी तरीके से जो ये 2 है, और ये जो कर्व जो इक्वेशन जो हमारे पास मेन गिवन था वो भी बेसिकली 3 डिग्री में दिया था। तो हमारे पास जो एसिम्पटोट्स है वो भी कितने आ गए, 3 आ गए। हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।